किया इन्होंने, एक हेक्सा कार्बोनिल कंपाउंड लिया। क्या किया? हेक्सा कार्बोनिल कंपाउंड लिया एंड दे हैव ट्रीटेड विद मेथिल। जैसे एक होता है एन ब्यूटिल लिथियम, ये है एन मेथिल लिथियम। ठीक है। अच्छा, क्या होगा, क्या क्या हुआ? अब देखिए, ऑक्सीजन, बेसिकली ऑक्सीजन पोलराइज हो जाता है एंड यहाँ पर लिथियम आ जाता है। एंड मेथिल, आपको पता होगा लिथियम यूज्ड टू हैव प्लस चार्ज एंड methyl used to have minus charge. So methyl will attack on the carbon and lithium will attack on oxygen. It's a quite simple thing because आपको पता है ये बॉन्ड कैसे टूटता है। ऑक्सीजन पे लोन पे ये आ जाता है माइनस चार्ज और कार्बन पे क्या आ जाता है? प्लस चार्ज। तो निगेटिव आएगा प्लस पे, तो यहाँ पर मेथिल आ गया ये। देन यू विल ट्रीट इट विद मेथिल आयोडाइड। सो व्हाट वुड बी हैपन, बेसिकली OMe यूज्ड टू रिजल्ट। ठीक है। अच्छा, डोंट बी गेट कंफ्यूज कि मैंने यहाँ पे तो एक ही बॉन्ड बनाया है, एक्चुअली यहाँ पे दो बॉन्ड। ठीक है। अब देखिए, इसके बारे में लिखा हुआ है कि एल्किल लिथियम अटैक एट द कार्बोनिल फॉलोड बाय एल्काइलेशन। इस रिएक्शंस का प्रोस्पेक्ट बता रहा हूं कि इसमें क्या हुआ है। फर्स्ट सम एल्किल लिथियम विल अटैक ऑन द कार्बोनिल ग्रुप एंड देन there will be a alkylation and it will result the carbene complex. Now dominant deuterionic resonance form in heteroatom stabilize the Fischer carbene. मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर इस केस में आप देखेंगे, जैसे अभी ये देखिए ड्यूटेराइन का ये फॉर्म है कि मेटल यूज्ड टू हैव माइनस नेचर and oxygen is having plus charge. So see, in the complex, plus and minus both the charge are available, then those complex are used to be called as deuterion. The best example, you know, the amino acids are deuterionic nature. ठीक है। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या था, आप बिकॉज ऑफ दिस deuterionic structure, और ये क्यों होता है? रिमेंबर, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हेट्रोएटम। और हेट्रोएटम अगर प्रेजेंट है तो टाइप ऑफ कार्बन कौन सी होगी? फिशर। सो द डोमिनेंट ड्यूटेराइनिक स्ट्रक्चर और हेट्रोएटम स्टेबलाइज्ड बाय फिशर कार्बन। अब देखिए, डू हैव द टू डिफरेंट टाइप ऑफ ओरिएंटेशन, वन इज कॉल्ड सिन एंड अनदर इज कॉल्ड एंटी। सिन और एंटी आई एज्यूम कि आपको पता होगा। अब देखिए सिन और एंटी में क्या है, देखिए दिस RR ग्रुप को अगर आप देखेंगे, if both are in the same direction then it used to be called as sin. If they will be up opposite direction, जैसे ये, so it will be called as anti. So depending upon the orientation of the alkyl group available on the heteroatom, they are of two type, one is sin and another is anti. Whenever the angle of orientation is opposite of both the R group, right, then it will be anti. If they are in the same direction then it will be sin. अच्छा, ऐसा मत सोचिएगा कि ये एक assumption है। नो, सी इट इज written as the sin anti isomer for alkoxy typically observed via the low temperature of proton anomar. Now can also be resolved by laser flash photolysis by the transient UV absorption. खैर ये जाने दीजिए, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मैं फिर से बोल देता हूँ, द फर्स्ट प्रिपरेशन यूज्ड टू बी परफॉर्म बाय द ट्रीटमेंट ऑफ alkyl lithium to carbonyl group followed by alkylation या methylation यहाँ पर कर सकते हैं। अच्छा, the carbene used to be exist in the deuterionic form, and deuterionic form I told you that whenever there will be a presence of positive and negative charge in the same molecule, then it will be called as deuterion, है ना? And it do have the two orientation, one is sin and another is anti. In case of sin क्या होगा? Always remember the alkyl group used to have the same orientation, or they will be directed towards the same end, then it will be called as sin. If they do be in opposite, then it will be called anti. चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए many more preparations are there। देखिए कोई तो, अब मैंने कार्बोनिल की बजाय कोई उसको एक जनरल रिप्रेजेंटेशन दिया Ln, ठीक है, C triple bond Y. Now any nucleophile will attack. Where exactly it will attack? You know very well. It is going to be attack on the carbon. ठीक है, देखिए यहाँ पे अटैक किया। अब क्या होगा? The overall complex will attain the minus charge. And the moment any electrophile is going to become, it will be get combined with
Y and it will result the carbene. बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, राइट? आप क्या कर लीजिए, आप एल्काइन टाइप के, मेटल एल्काइन टाइप के कंपाउंड्स ले लीजिए और यू ट्रीट इट विद एनी न्यूक्लियोफाइल. व्हाट इट विल डू, इट विल अटैक ऑन द alkyne carbon and then followed by the इलेक्ट्रोफाइल अटैक, यू विल बी एबल टू गेट इट योर डिजायर्ड प्रोडक्ट. अब देखिए यहाँ पर Y की वैल्यू क्या है, Y क्या हो सकता है, O है या NR है, और NU क्या है, OMe NR2 LiMe. अच्छा, अब देखिए एक और दिया है, एसिल इंटरमीडिएट इज ट्रीटेड विद इलेक्ट्रोफाइल टू गिव द फिशर कार्बन. ये एसाइल इंटरमीडिएट है. अब देखिए इलेक्ट्रोफाइल से अटैक किया तो क्या हुआ, बेसिकली H हैज बीन abstracted from this carbon and they have resulted EH. The moment H will be withdrawn, now the carbon will be having the availability of two bond with metal. So in that case, it will be called as carbene, Fischer carbene. दूसरा क्या है, न्यूक्लियोफाइल ले लीजिए, वो भी कभी कभी खींच लेते हैं. ठीक है. अब देखिए एक और पॉसिबिलिटी है, हालांकि इस केस में इसको आइसोलेट करना मुश्किल हो जाता है, ओनली इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मेटल. आप कोई कोऑर्डिनेशन कंबाइन और डाइएजोमीथेन से रिएक्शन कर दीजिए, and you know that N2 is very easily get cleaved off. तो देखिए N2 निकल गया है और CS2 is going to be combined, and you know very well that which type of carbene it is. If there is a presence of two hydrogen atom on the carbon and bonded with the metal through double bond, then those carbene will be called as Strock type of carbene. ठीक है. अब देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि alternatively hydride is abstracted from a position of metal alkyl and proton abstraction results the Strock type of carbene. ये मैंने आपको अभी बोला. So I have told you the three preparation method of preparations for the Fischer type of carbene and one is for Strock. पहले में आपने क्या किया था, you have treated your compounds या metal carbonyl with alkyl lithium followed by alkylations, right? सेकेंड में आपने क्या किया, यू हैव पिक्ड अप अ मेटल एल्काइन कॉम्प्लेक्स एंड ट्रीटेड विद न्यूक्लियोफाइल, एंड न्यूक्लियोफाइल विल टेक प्लेस, विल अटैक ऑन द कार्बन एंड देन फॉलोड बाय इलेक्ट्रोफाइल अटैक, इट विल यील्ड द मेटल कार्बीन कॉम्प्लेक्स. एक दूसरा हमने ये सोचा कि डायरेक्टली इट विल बी अटैक्ड बाय इलेक्ट्रोफाइल, व्हाट इलेक्ट्रोफाइल वी विल यूज टू डू, इट विल अब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन. देखिए यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल था, इलेक्ट्रोफाइल विल अब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन, और ये देखिए क्या बन गया, फिशर टाइप ऑफ कार्बन. अच्छा, न्यूक्लियोफाइल कैन आल्सो यील्ड द मेटल कार्बन. इन व्हाट वे, इट कैन सब्सट्रैक्ट द प्रोटॉन, राइट, एंड देन अगेन इट विल रिजल्ट टू मेटल कार्बन. Another thing is that if you will treat the any compound with diazomethane, then the nitrogen will be cleaved up very easily and it will make a bond with carbene fragment. It will make a double bond with carbene fragment and you will be able to get it. ठीक है. अब देखिए next. अब this is the chemical properties. अब देखिए ये कार्बीन है, सपोज, not suppose, it is. देखिए क्या होता है कि if you are providing the heat to this complex, ठीक है, ये डबल बॉन्ड अंदर आ जाता है और देखिए ये प्रोडक्ट बन जाता है. In some of the cases it get combined with 2:2 cycloadditions, ये देखिए, and it will present the dimer. अगर आप इसी मोनोमर को के दो यूनिट एक दूसरे से फ्यूज करेंगे, then you may be able to get it a dimer like this. ठीक है. सेकेंड क्या है, there will be oxidative cleavage. For example, if you are using the oxidant like cerium +4 or pyridine N-oxide or DMSO or the simple oxygen, देखिए ये कीटोन फ्रेगमेंट आपको अचीव होता है. जो मेटल कार्बन की बॉन्ड है, दैट विल बी ऑक्सीडेटिव क्लीवेज इन द प्रेजेंस ऑफ सीरियम +4 और pyridine N-oxide. ठीक है. अब थर्ड देखिए क्या है, ये कोई कार्बीन कार्बन है. ठीक है. अब देखिए हाइड्रोजन विल अटैक. अब देखिए क्या होगा, CH3 बनेगा. अब इट विल मेक एन रीअरेंजमेंट.
ठीक है। और ये देखिए ईटा 2 कंपाउंड बनाता है, ठीक है। यहां पर पहले जो है वो एक ईटा 1 टाइप का कॉम्प्लेक्स है या कार्बिन कॉम्प्लेक्स है। नाउ 3 ड्यूरिंग द रीअरेंजमेंट इट विल मेक ईटा 2 कंपाउंड। अच्छा, may I know anyone can tell me that why it will make eta 2 compound even though the metal carbon are stronger? बताइए जरा। आप इसको देख के क्या लग रहा है कि बेसिकली कोई कार्बिन प्रिकर्सर किस में कन्वर्ट हो रहा है? ईटा 2 में। जरा मुझे बताइए कार्बिन ईटा 2 में क्यों कन्वर्ट होना चाहेगा और अंतर क्या है, बस इसी पे फोकस करिएगा। देखिए आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, पहला रीअरेंजमेंट मैंने दिखाया है। In this rearrangement, if you will notice, what changes are going to be happen? The earlier iron is having a single bond with the carbon, right? And the moment it will have the attack through H, right? What it will use to do? It will make the eta 2 compound. अब मुझे बताइए eta 2 क्यों बनाएगा कोई चीज? बोलिए भाई। ये 1,2 प्रोटॉन शिफ्ट है, याद रखिएगा। So it will become more stable. कैसे बेटा? आंसर तो सही है बट कैसे? So the bond will shift. The hydrogen will extract that bond which is there on CH2 double bond, and then between carbon and Fe there will be double bond. So it will become like more stable. I think so. नहीं नहीं नहीं, बट इन ईटा 2 कार्बन, ये जो ये कार्बन है ना, ये वाला, ये डबल बॉन्ड से नहीं जुड़ा है। ईटा 2 नाम ही बता रहा है। देखिए शी इज पार्शियली राइट। एक्चुअली ईटा 2 विल बी मोर स्टेबल। व्हाई? बिकॉज नाउ द मेटल कैन बी कोऑर्डिनेटेड विद 2 कार्बन। ईटा 2 बोलते हैं उसको, जो रिप्रेजेंट करते हैं इन दैट देयर विल बी अ वन सिंगल बॉन्ड, बट ऑलवेज रिमेंबर इट इज द रिप्रेजेंटेशन व्हिच करस्पॉन्ड दैट द मेटल इज कोऑर्डिनेटेड विद द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ पाई बॉन्ड, बट बेसिकली इट इज इन्वॉल्व विद बोथ द कार्बन। ये याद रखिएगा। एंड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अवेलेबल ऑन द कार्बिन, द बॉन्ड इज गोइंग टू बी चेंज। बॉन्ड इज गोइंग टू बी चेंज मतलब यहां पर देखिए अभी तो एक बॉन्ड से जुड़ा है, एक साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर बन सकता है और ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा उस केस में, ठीक है। ये क्या बताता है कि दिस मेटल इज बेसिकली कोऑर्डिनेटेड विद द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एल्कीन। ये रिप्रेजेंटेशन होता है। एंड द मोमेंट आई सेड ईटा 2, इट सिंपल मींस दैट द मेटल इज कोऑर्डिनेटेड विद बोथ द कार्बन, right? Now see, earlier it was coordinated with only one carbon. Now during the 1,2 proton shift, what nature is going to be achieved? Basically now there will be a bond between both the carbon. So of course if the metal is being coordinated in a cyclic prospect, of course it will be more stable. That's why it favors the 1,2 proton shift। ये याद रखिएगा। सेकंड नीचे देखिए क्या है, ये एल्किल शिफ्ट है। इसमें क्या हुआ, दिस R gets shifted to this carbon, and the moment it gets shifted, देखिए rearrangement हो गया। अब देखिए ये R नीचे आ गया है, यानी ये R बेसिकली यहां पर गया था, ये बॉन्ड टूटा, ठीक है। एंड नाउ इट इज अगेन ईटा 2, ठीक है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखिएगा। द कार्बिन प्रिकर्सर आर रेडिली बीन इन्वॉल्व इनटू 1,2 प्रोटॉन और 1,2 एल्किल शिफ्ट। पहला वाला 1,2 प्रोटॉन है और दूसरा वाला 1,2 एल्किल है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए एक और प्रोसेस है कि अगर इस तरह की कार्बीन को, ठीक है, ब्यूली से ट्रीट किया जाए, राइट, तो क्या होगा, प्रोटॉन सब्सट्रैक्ट होगा और ब्यूटेन का फॉर्मेशन होगा, ठीक। अब देखिए ये स्ट्रक्चर है। इसमें क्या हुआ कि इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया। वी डोंट नो फ्रॉम वेयर द प्रोटॉन इज गोइंग टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड, दैट्स व्हाई वी हैव केप्ट इट माइनस। To nullify or to neutralize this coordination sphere, there will be a presence of cation and that is acting as lithium. अब देखिए this minus charge during the resonance may occupy at this metal center,
The moment it will become here, that moment of time the oxygen, अब देखिए इसको मैं अंदर एंट्री करा दूं या ऑक्सीजन का एंट्री करा दूं, ऑक्सीजन का लोन पेयर डबल बॉन्ड बना रहा है, इस स्ट्रक्चर को देखिएगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर डबल बॉन्ड बना रहा है, सो ऑक्सीजन विल कैरी प्लस चार्ज एंड द मोमेंट इट विल मेक अ लोन पेयर, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा जो ये मेटल कार्बन, एंड ये कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? इसका रेजोनेंस बना के देखिएगा। लिथियम से आपने इसको क्या किया, आयनिक किया। नाउ ऑक्सीजन विल give the electron or it will contribute its lone pair. Now the moment it will contribute its lone pair, there will be a bond formation, a double bond formation, ये देखिए double bond हो गया। Now oxygen will carry positive charge, and the moment the carbon and oxygen, this one is carrying the double bond character, the metal carbon bond which was double bond now will be split up and chromium will carry the minus charge। समझिएगा इस चीज को। यहाँ आपसे देखिए इस ऑक्सीजन को मैं यहां पर लेता हूं, ऑक्सीजन के लोन पेयर को, तो ये डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, इस पे माइनस चार्ज आएगा, ये देखिए, ठीक है। एंड द मोमेंट यू विल ट्रीट इट विद ये क्लोरो एल्कोक्साइड, तो देख लीजिए वहीं पर जुड़ गया, यहां से H चला गया और CH2COMe बन गया। अब आपको अभी अभी मैंने पढ़ाया 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है, और 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट में अगर देखा जाए तो इसे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट नहीं है ये, मेथनॉल अगर हीट करने पे निकल जाए MeOH, तो क्या बचा, CH बचा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये देखिए। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ऑफ द फिशर कार्बीन, द कार्बन एटम हैविंग एनी बीटा हाइड्रोजन्स आर एसिडिक एंड obstructed readily by this। ठीक है। Next, many more reactions. Some of the reactions where the carbon is going to be reacted. अब देखिए, for example, NH2R, तो क्या होगा यहाँ पर देखिए, ये इस पे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, इस पे माइनस चार्ज आ गया, ये देखिए माइनस चार्ज आ गया, और यहाँ पर ये बॉन्ड हो गया। अब इसके ऊपर प्लस आ जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर। तो क्रोमियम, व्हाट क्रोमियम विल डू, अब यहाँ पर देखिए OMe का मेथनॉल निकल जाएगा और NHR आ जाएगा, तो जैसे मेथनॉल निकला इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको ध्यान से देखिएगा। आपने क्या किया, एमीन से रिएक्शन कराई किसी कार्बीन की, तो क्या होगा, एमीन विल अटैक ऑन कार्बीन कार्बन। नाउ द कार्बन को कार्बन की कंडीशन देखिए, मेटल से डबल बॉन्ड से जुड़ा था और दो पहले से ग्रुप उसके पास थे, एक OMe एक PH, तो कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी थी। आपने जैसे ही अमीन किया, नाउ कार्बन विल हैव 5 कोऑर्डिनेशन, है ना, एक NH2 का, एक OMe का, एक PH का और एक मेटल कार्बन डबल बॉन्ड, और कार्बन रख कितना सकता है, 4। सो इन दैट केस व्हाट वुड बी हैपन, द OMe विल टेक द प्रोटॉन फ्रॉम amine and it will be leave the system, and now again carbon will attain 4 coordinations। ठीक है। देखिए, अटैक ऑफ amine can give a deuterionic intermediate। deuterionic मैं आपको बोल चुका हूं, if there will be a presence of plus and minus at a time, then it will be called deuterion, which produces the aminocarbene with the loss of corresponding alcohol, ये वाला। अब इसी रिएक्शन में देखिए एक दूसरा हो सकता है, जब आप कार्बीन को किसी एल्कीन से ट्रीट किए, एल्कीन डेरिवेटिव से, देखिए फिर से वही चीजें हैं, मेटल कार्बन एल्कीन का जो ये मेटल एल्कीन बॉन्ड है वो टूटेगा, टूट गया, एंड नाउ ये देखिए कार्बन के साथ ये जुड़ रहा है, ये क्या है, एल्कीन है। अब देखिए, द मोमेंट द बॉन्ड इज गोइंग टू बी क्लीव अप, chromium will attain minus charge and this minus will attack on this carbon, और ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा, और ये देखिए साइक्लिक रिंग बनेगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन से देखिए क्या हो रहा है, alkoxide will provide the electron, it will come double bond, and now this double bond will be split into plus minus, and the moment it will come minus, it is nucleophile, it will attack on the carbene carbon, इस पे अटैक किया तो ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड जैसे ही टूटा, मेटल विल अटेन माइनस चार्ज एंड दिस माइनस विल अटैक ऑन द एल्कीन कार्बन, और ये साइक्लिक रिंग बनी। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, बेसिकली अगेन मेथनॉल इज गोइंग टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। कैसे, देखिए
ये पर्टिकुलर बॉन्ड यहां से ओपन हो रहा है, देखिए COR, और यहाँ पर एक H कोऑर्डिनेट हो रहा है। यहाँ पे जो एक H है वो यहाँ से बॉन्ड बना रहा है, ये देखिए CH के साथ, ठीक है, COR और ये कार्बन। अब ये पर्टिकुलर फ्रेगमेंट निकाल के देखिए स्ट्रक्चर क्या बचा। इवन ये जो यहां तक है ये भी सही है, केवल यहाँ पे हीटिंग मत करिएगा। दिस इज कॉल्ड एल्कीन मेटाथेसिस। अच्छा, अब इसमें देखिए ये एक कार्बिन था, इसको हीट कर दिया आपने, तो क्या हुआ, ये जो डबल बॉन्ड है इट गेट कंबाइंड विद मेटल सेंटर, ये देखिए, विद द लॉस ऑफ 1 CO ग्रुप। ठीक है, जाने दीजिए ये सब। हाँ, ये एल्काइन कॉम्प्लेक्स था। इससे अगर आप करेंगे तो देखिए मेटल और कार्बिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और यहां पर आप देखिए दो पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड इज ऑलरेडी बीन इन्वॉल्व विद द मेटल, वन मोर पाई बॉन्ड इज अवेलेबल। तो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड से 2+2 साइक्लो एडिशन करेंगे, ये देखिए, और 1 डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, these all reactions used to be happen in presence of light। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, ये एक फेमस रिएक्शन है बट इसके बारे में छोड़ दीजिए, आपको इतना डिफिकल्ट में पूछना नहीं चाहता, जाने दीजिए इसको। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड एक्चुअली। ठीक है, 5 रिएक्शंस याद रखिएगा। पहला क्या था, फिशर प्रिपरेशन, में पूरा रिपीट कर देता हूँ। फिशर प्रिपरेशन में क्या है कि आप एल्किल लिथियम से मेटल कार्बोनिल को ट्रीट करेंगे, फॉलोड बाय एल्काइलेशन। ठीक है, इट विल रिजल्ट cis and anti। Syn and anti, in case of syn, basically the R group used to have the same directions, then it will be syn. If they will be opposite, then it will be anti. Next is basically metal carbine complex, where the nucleophile used to be attack on the carbine carbon, and then followed by the electrophilic addition, it will result to metal carbene। metal carbine से metal carbene बन रहा है। In the next step, there will be a proton obstruction, and the proton obstruction will result to the metal carbene by the formation of metal carbon double bond। Similarly, nucleophile can also attack and it can also obstruct the proton। याद रखिएगा, एक में हाइड्राइड के फॉर्म में जाता है और एक में प्रोटॉन के फॉर्म में जाता है। ठीक है, सो एंड if you will treat with diazomethane, what it will be happen, the diazo, especially the N2 group, can easily be cleaved up, and it can, CS2 can directly coordinated with metal center। Acha, another is that if you treat it solvated platinum, I must say complex, because एस्टोनाइट्राइल inside है, और उसको एमीन से अगर आप ट्रीट करेंगे तो आप देखिए एस्टोनाइट्राइल इज गोइंग टू बी सब्स्टिट्यूटेड एंड यू आर गोइंग टू गेट इट दिस कार्बिन। ठीक है, नेक्स्ट। अभी इनकी रिएक्शंस में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल दे डू इन्वॉल्व, देयर विल बी अ डिकम्पोजिशन इन प्रेजेंस ऑफ हीट। सो व्हाट वुड बी हैपन, ये मेटल कार्बन बॉन्ड टूट जाएगा, एंड द मोमेंट दिस बॉन्ड इज गोइंग टू बी क्लीव्ड ऑफ, टू this double bond will be generated within the ring, ये देखिए, and now what would be happen, it can dimerize and result such type of structure। Another is that in presence of oxidant, there will be oxidative cleavage, and the metal carbon bond is going to be broken and C will be get combined with oxygen, but there will be a 1,2 hydrogen shift or 1,2 methyl shift। Why do it happen? Because it by this process we will be able to get it eta2 complex। ठीक है, and eta2 complex are more stable with respect to the metal carbene। देखिए सिंपल सा कोई चीज ले और ये हुआ। नेक्स्ट, in this case basically on treating the metal carbene complexes with BuLi, there will be a ionic nature, and on following additions with chloroestamide, it will be get combined with CuCS2 amine। Another is that amine reactions। In case of amine reaction, amine will attack on the carbene carbon as a nucleophile, and then there will be a bond cleavage between metal carbon। ठीक है, now methanol या alkoxy group will subtract the proton, and it will again regenerate a bond between metal carbon by the formation of amine based carbene। The next is
the reaction with alkene. In this case, again, it will attack on the carbene-carbon, bond cleavage, cyclic stage will be formed, right? And then this particular PHCOMe, PHCOMe, and this much, this carbon, right? And they do get cleaved out, and there will be a formation of metal carbon double bond. Next is, you can say, cyclizations. In the process of cyclization, if there will be availability of any double bond in the substituent attached on the carbene carbon, they do get combined with 2+2 cycloaddition or 4+2. It all depends upon the nature of bond. Then it will make a cyclic structure like this. Ab